afternoon to all of you, and hopefully you all are doing your great work. As far as the first year concerned, and as far as the last year concerned, and the first time I'm taking the introductions class of electronics engineer, so that they can able to know what are the the future scenario and future perspective he had. Okay, so no issue. First, I will do the some agenda today, and the my today's agenda is nothing but that is the fabric fabrication process, right? So I will start how as an electronic engineer you can able to design your PCB fabrication or PCB design. Okay. So in today's class, we will deal with PCB design and fabrications. Why the PCB fabrication is important for as an electronics engineer? Because you when you will see outside from your home and inside your home, 90% are electronic items. 90% electronic item. All the devices incorporated with the chip and electronic chip start from your mobile charger to your if you will able to see the mom are using on daily basis, all are electronic. Your father is using, all are electronic. All are not 90%, right? And you are using also the 90%. Only one gap is as far as the bridge is required to you people. If you want to see the actual condition of the current scenario, I already told many times, and still try to contact with your final year students so that they can tell the real pictures. I will tell different thing and anyone can tell different thing, but actual story is as far as the placement concerned, Infosys, uh, TCS, finally that still not came, Cognizant, then Wipro. Then just I just opened the mail ID. I just received the mail. Orange. In all the company, compared to actual I want to compare right now, because uh, far better than, not better than, far better than the CSC placement. You can understand. So what is the impact of electronics engineer? Because our department trained the students in such a way they are able to catch the jobs as compared to other departments. Not here only, they also perform outside environment also. Many IAS students have qualified from the different department. Recently, 7th rank has qualified in KS exam. So not we are talking about the only the company and other things, and a job is different, somehow different as far as the skills. As far as the skills concerned, what I will give the directions, what I will provide the platform, please observe minutely, right? My all statements is really important for your future perspective. If you will take, is okay. If you will not take, it's your ways. But you can also take the feedback from your final years, because he's the main students. They can guide, after 3 years they are knowing which department is doing great and which department's faculty are concerning about the your job gate and anything, right? So so after this we will discuss these things again, but today first page I will discuss about your uh, fabrications portions. Okay, let us start the fabrication process. So PCB, all you are knowing the name or not, I don't know. So printed copper board, or sometimes printed circuit board is name is there, and this PCB is nothing but there is a if you are able to see, this is the PCB, right? This is the PCB in my hand, right? This is the PCB sheet, and you can design your circuit. How you can design your circuit? How you can take the print, and how you can actually implement your project. And 30 students are already attended my class, previous class,
In today's class, I'm expecting from next week, you peoples also, and those who have already done some work in PCB, they will provide one project to me within 10 to 15 days, right? In the span of time you should provide, right? So those have already attended my previous class, they will give the better idea, and I will ask them to also. So the first, if you are not able to see the PCB, this, one other side is a glass, okay, and this is the copper, right? This is the copper side, this is the glass side. So if your let us assume that your you want to design your mobile PCB, and you will you want to design your mother mixers PCB. So all depends on the plate size. What are the components are required to incorporate? So the basic component of all PCB is RLC. You all are remember this, but how the resistance can be optimized, how the inductors can be optimized, or capacitor is optimized. We will also see the basic concept. Since if you went and do the prepare with the some instrument, electronic instrument to some nearby your shop, that is not an engineer, that is that is repair man or skilled person, but they are earning a lot due to one skills only. How they can what are the advantage of that persons, you understood. If your mobile is not working, and if you went there and they are preparing and do without any degree, but they are able to provide the solutions. So that is the skills, and that skills also required now these days for the engineers, right? Why electronics people अब मैं आज से बता रहा हूँ फिर से, please divide your work in two sector, please. This is my humble request to all of you again. Please divide your concept in two parts. One is programming parts. In 2021 to 2030 era of this 10 years, without programming you are nothing, you are nothing, nothing. At the time of I was done BTech and MTech, it's okay, but still I am learning, and I also just now I have conducted the internship program with 1 hour before 2:30 was completed, and everyone final year student has done on the Pythons, and because we should learn the Python so that I can ask the question to you, and check your skills. So that is the label. So your one programming is language is really important, beta, really important. And please remember this: if your programming skills is good, no one will compare to you. No one मतलब कोई branch नहीं, either material science or either computer science or कोई भी, because electronics people have the skills of electrical, electronics, somehow mechaelectronics, that is mechanical parts. If you know the language, then fantastic. So we have syllabus is different parts, okay. So 60% part is the basics of in electronic subject, and 40% is the programming subject. But at the same time, yes, as far as the programming concerned, electronic faculty maybe not provide in 100%, but they will try to give the 90% or 80%. 20% you should get from different type of resources are available. So currently resources is infinite, and we are doing our BTech MTech, the resources is limited, but now the resources is infinite. But which resources is important, right? You are not looking for the on different types of resources anyone post on the Google. So please kindly follow the NPTEL subject and Coursera, standard, somehow standard, and you can also refer the MIT lectures and other lecture also, okay. So and please I'm not giving the ज्ञान, and I think please write down also, okay. ऐसा नहीं है कि पूरा कहानी खत्म हो जाए उसके बाद प्रसाद ले लेंगे आप, बस आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा. So please you are not प्रवचन नहीं सुना रहा हूँ मैं, okay. So you should have one small separate copies of this my subject or all subject, right? This is the very good clue I am giving to you. This is really beneficial for your exam, future exam, okay. So
how you can divide your skills, program parts, and second one is the your GATE and GATE, IES, NET exam. For the government job, GATE is really important. So but the other part is the conceptual parts is really important. Okay, programming also conceptual, but you should create your skills in such a way you are able to um, program any time, any instant of time. If any types of problems we can give, you can able to program that one. Okay, so please this please do C and Python at least, right? And other language you can also able to do Java, right? C++, data structures, all are in our syllabus in BTech. But this too is very important. Please don't concentrate other. If you are an electronics guy, if you want to continue, some students are very good in programming language, so it's okay. There's no issue. But if sometimes after 1 year you thought, अरे यार मैं तो electronics engineer हूँ, मुझे programming की जरूरत नहीं. Now you should require the programming skills, and only two programming skills is enough for you, right? C and Python. Currently Python, बीच में कुछ और आ जाएगा. पहले SAP था, SAP was very popular, Java was very popular, तो ये चेंज होते रहते हैं. बट बेसिक जो C है इज मास्टर ऑफ ऑल द लैंग्वेज. ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लीज और ट्राई करिए कि कोर्स करने का. एंड कोर्स का जो दो मेन प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है आपका NPTEL एंड अदर वन इज Coursera. सो दो प्लेटफॉर्म से आप कोर्स करना स्टार्ट कीजिए. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा. सो नाउ ध्यान से देखना, पीसी फैब्रिकेशन करेंगे कैसे. लेट अस अज्यूम दैट हाउ यू कैन डू द पीसी फैब्रिकेशन. विकी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना बेटू? यस सर. यस सर. हाँ, जिससे मैं पूछूं वही बताए प्लीज. मैं जिसका नाम लूं वही बताएगा, राइट? अदरवाइज नो इंटरफेरेंस इज देयर, राइट? मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा है आप लोग को, तो मैंने बताया था कि कैसे इंटरफेरेंस होता है, वो एग्जांपल है. तो नो डाउट सबको हम बताते जाएंगे. और हम थोड़ा आगे चलते हैं. पीसीबी फैब्रिकेशंस के बहुत सारे टूल्स हैं, डिजाइन टूल्स हैं. उसमें ईगल एंड पीसीबी एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है, और जो इजी है वो है पीसीबी एक्सप्रेस. पीसीबी एक्सप्रेस पीसीबी एक्सप्रेस क्या है, कैसे डाउनलोड करेंगे, सब मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा. बट पीसीबी फैब्रिकेशन का पहले मैं एक प्रोसेस बताता हूँ. तो प्रोसेस, राइट डाउन प्रोसेस ऑफ द पीसीबी फैब्रिकेशन. सो स्टेप वन क्या होगा कि मैंने आपको लेट अस अज्यूम दैट आई विल गिव सम टास्क, काइंडली डिजाइन वन सर्किट, राइट? So that you are able to control the adaptive control of light, right? You are adaptive control the light. Let us assume that 10 poles has installed in our campus, and all are equipped with the different LEDs. And as a design engineer, you want to do such a program so that when the light will there, then automatically switch off. When light will not there, then that will automatically glow. So how many skills are required in this case? That is a complete engineer. No, previously one part has done by electronics engineer, other parts was done by computer science engineer. But now no. As far as you people are associated with electronics engineer, so I want to train in both the case, right? How that's why electronics ऐसा नहीं है कि electronics engineer को लेने के लिए आ रहे हैं वो, नहीं ऐसा नहीं है. But you have the both skills, then these people understood. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप material science के हो या civil से हो, you should have the skills. But क्या होगा, उनको बताने वाला कोई नहीं है अभी. अभी जैसे फर्स्ट ईयर में कोई आया है, वो material science में ही है, बट उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी फैब्रिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो कंपनी विल टेक, नो इशू, राइट? उसको सिर्फ क्या चाहिए बेटू, स्किल्स बंदे चाहिए. और फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है. दूसरा, आप में से आउट ऑफ 95 स्टूडेंट्स, आई वांट कि आप भी ना कोई स्टार्टअप में अपना रोल प्ले करें,
कंपनी खोलें। ऐसा नहीं कि सब कोई चाहोगे कि मुझे मुझे मैं जॉब ही कोई लुकिंग, यू ऑल आर लुकिंग फॉर द जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि कितने बंदे को जॉब देगी कोई कंपनी? So you should also do some different types of innovation, so that the you will create the some job also in the future. So you are in the first year. Is this the right time to think in that way also? It depends on you, आपको क्या करना है। बट मेरा काम है आपको दो चीजें बताना। तो मैंने क्या बताया कि मुझे ये टावर्स हैं, ये पोल्स हैं लगे हुए स्टेट में। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बल्ब रहता है और वहां पे एक स्विच लगा रहता है और एक सिक्योरिटी गार्ड मूव करता है यहाँ से यहाँ, और स्विच ऑफ और स्विच ऑफ कर देता है, राइट? अवनीश कुमार सिंह, आई एम राइट बेटा? ऐसे ही होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So please unmute Rana. Huh? So as this is the is this any engineering in this case? Is there any engineering? Yes, sir. कोई इंजीनियरिंग है इसमें? कोई इंजीनियरिंग है इसमें कि पोल पे लाइट लगी हुई है और उसको सिक्योरिटी गार्ड जाके ऑफ कर दे स्विच को? तो देयर इज नो इंजीनियरिंग, राइट? दैट इज सिंपल इलेक्ट्रिकल डिप्लॉयमेंट, है ना? Yes, sir. Right, Ashwin? So as an electronic engineer, what you can do, let us assume that आप क्या करो कि जैसे ही लाइट आए, let us assume that now 6 a.m. let us assume 6 a.m. or 7 a.m. so sun will rise. Yes, sir. So light will be strikes here. Yes, So now on the basis of light intensity, if the light will glow increasing intensity, then Yes, sir. it is automatically switch off the light, right? So Yes, this sir. is the one problem. If you are able to do the programming in such a way, Yes, sir. so then the engineering comes, right? Yes. So Yes, sir. Jessica, mute kar lo. Jessica, unmute please. Yes, sir. So understood the questions, Betu? If there Yes, are sir. 10 poles and all have installed different types of LEDs, and in the general electrical engineering, the security person went there and just switch off the light, right? But Yes, sir. as far as the electronics engineer, you want to two things here. One, what are the electronic circuit is required? What is the electronic circuit is required? पहला। दूसरा, what is the programming conditions? So programming में क्या होगा? If else आएगा कि नहीं आएगा बेटा इसमें? यदि Yes, sir. if intensity of light is greater than 35, let us assume that 35, then and only then क्या हो? Off हो, otherwise else on रहे, right बेटू? Yes, sir. Right. So this is the if else conditions and other condition, while conditions. So all are the basics of programming, right? So क्या part लगा एक Jessica? Programming parts, right? Yes, One part is the programming parts. And सब कुछ भूल जाओ, खाना भी छोड़ दो, ये भी करो, लेकिन प्लीज पाइथन और सी को नहीं छोड़ना है, राइट? अब मैं हमेशा बताता हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे? बिकॉज इफ यू डू द सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, देन मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट एनीवन, राइट? बिकॉज उनका सिलेबस टफ है, पूरा मैथमेटिक्स है, टू तक देखोगे आप, पूरा मैथमेटिक्स है। नाउ एक ही चीज की कमी है, दैट इज द प्रोग्रामिंग। तो आप प्रोग्रामिंग को, यदि आप, तो इसमें एक प्रोग्रामिंग आ गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या पार्ट होगा बेटू? इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या लगा होना चाहिए बेटू? आप थोड़ा सा सोच के बताइए। आप सब में से जिसको बताना हो प्लीज चैट में बता दीजिए बेटा, प्लीज चैट में बता दीजिए, प्लीज चैट में बता दीजिए। सोचिए और मुझे बताइए क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे वो करेगा। एनीवन प्लीज, एनीवन? फिर से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आप लोग से। कोई है, किसी को मालूम है? प्लीज, नहीं है तो प्लीज बताइए, तो फिर मैं अपना बताऊं ना बेटू। हाँ, कोई किसी ने किया, वेरी गुड। सो सेंसर, ल्यूमिनेंस मीटर, एक मिनट, वेरी गुड, बहुत ने बोला गुड इवनिंग सर, गोइंग नाउ बेटर,
Okay, sir, voice not. Vicky, you are able to listen me, Bitu? LDR, very Yes. good. Sisti, please unmute. Very good. Yes, sir. हाँ, very good. So LDR, आपने बोला LDR? Yes, sir. Yes. कैसे काम करेगा बेटू? सर एलडीआर लगाने पे होता है कि जब अंधेरा नाइट रहेगा तो वो लाइट जल जाएगा खुद से, जैसे उस पे लाइट पड़ता है उसके सेंसर से वो अपने आप वो बल्ब जलने लगता है, सोलर लाइट। तो क्या होता होगा आपको पता है बेटू? ऑफ कब होता है कोई सर्किट? जब रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है या रेजिस्टेंस कम होता है? बताइए बताइए मैम। रेजिस्टेंस हाई होता है सर। जायरो गेमिंग अपना नाम चेंज कर लो, है ना? हाँ सृष्टि, इज यू आर राइट, एलडीआर। बट अब आता है, चलिए एक ने बता दिया एलडीआर सेंसर यूज करेंगे, वेरी गुड, फंटास्टिक। अब लॉजिक की बात है। अब लॉजिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का, कि एलडीआर बनाया होगा कैसे यार, कैसे बनाया होगा? तो क्या चाहते हो, लाइट यदि बढ़े, लाइट यदि इंक्रीज हो इंटेंसिटी 60, तो आपका सर्किट ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए, क्या चाहेंगे आप? जब सर हाँ, जब सर्किट इंटेंसिटी इंक्रीज हो तो लाइट मतलब ऑन हो जाए सर्किट? नहीं, ऑन हो जाए कि ऑफ हो जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैम, ये आप बताइए ना। ऑन होगा सर। अच्छा ओके, ये तो यानी लाइट है, लाइट यदि बढ़ता जाएगा और यदि आपका वो सर्किट ऑन हो जाएगा, सर्किट ऑन हो गया यानी स्विच ऑन हो गया, तब तो आपका बल्ब जलने लगेगा बेटू। हाँ तो हम हाँ बताइए। तो लाइट बढ़ने से आपका रेजिस्टर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए बेटू? रेजिस्टर तो घटना चाहिए ना सर। अच्छा ठीक है, एकदम सही। यदि रेजिस्टर घटेगा तो करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। रेजिस्टर अगर घटेगा तो करंट ज्यादा होगा। हाँ, आपको पता है नहीं बेटू, B इक्वल टू IR। IR, हाँ हाँ, तो I इक्वल टू B बाई R, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना? तो R जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही करंट कम होगा, है ना? तो सर्किट को ऑफ करना है, तो इस कंडीशन में क्या होता होगा? कभी भी याद नहीं रखने का, कभी भी जिंदगी में कोई चीजें, इसलिए मैंने LDR का एग्जांपल लिया बेटू, है ना? तो क्या होगा, चलो सृष्टि बताओ। Anyone want to comment? Aditi Priya, please unmute. यस सर। हाँ, क्या होगा बेटू? सर जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो मतलब सर्किट ऑफ हो जाना चाहिए। हाँ, इंटेंसिटी जब इंक्रीज हो तो सर्किट ऑफ होना चाहिए, एकदम वेरी गुड, सर्किट ऑफ होना चाहिए। और सर्किट ऑफ का सिंपल रूल है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाए, है ना बेटू? यस सर। समझ में आया? सो इसीलिए उसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, LDR। किसी ने देखा है LDR का पिक्चर? किसी ने भी? एनीवन? कोई बताना चाह रहे हो? कोई बता? यस, नो सर। अच्छा ऋतिक, ओके। सो ऋतिक, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। LDR का सेंसर होता है, आप लोग को दिखेगा तो बताइएगा ना, मैंने अपना दूसरा स्क्रीन शेयर किया है। ओके, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है क्या बिट्टू? यस सर। LDR का दिख रहा है फोटो? यस सर। यस सर। यस सर। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द LDR। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कभी भी वेरिएबल रेजिस्टेंस दो तरीके का दिखेगा, आपको रेस्टोर्ड की तरह दिखेगा और इस तरह से। इस तरह का क्यों दिया जा रहा है बेटा? बिकॉज ड्यू टू द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टर। यदि एक ही होता बेटू तो क्या होता ऋतिक, क्या होता? एक ही स्लॉट लगा होता, राइट? लेकिन ये मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है बेटू? मल्टीपल वेरिएबल्स है। क्लियर बेटू? अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो यदि कभी भी आपको बोला जाए कि मतलब कैसा दिखता है, तो ऑल आर द LDR, है ना? और इसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्डिनो है, जो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल होता है, नहीं होता है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। सो अब आपसे सबसे पूछना है हमें
कि अभी कैसे करेंगे। अब आप बताइए, आप लोग बताइए बेटू कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब एक तो ये हो गया है ना। अब आप जस्ट मिनट, मैं अपना प्रेजेंट स्टार्ट कर लूँ बिकॉज स्क्रीन दिख रहा है बेटू, है ना। सो LDR is a light dependent resistor. That means it's it's nature of this because it's the variation of nature, right. जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस पॉइंट तक लेगा तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यदि यहाँ तक होगा तो बहुत रेजिस्टेंस कम होगा और वो ऑन हो जाएगा। तो यदि आपको पूछा जाए कि इसमें क्या क्या लॉजिक लगा, तो देयर इज टू लॉजिक्स। वन इज द हार्डवेयर पार्ट, जो हमें ये LDR के जो सेंसर है उसका यूज करना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम को हमें सॉरी इस हार्डवेयर को किसके साथ लिंक करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पार्ट से। और सॉफ्टवेयर पार्ट में क्या प्रोग्राम करोगे अमन क्या करेंगे सॉफ्टवेयर पार्ट में, क्या डालेंगे बेटू? अमन, राज प्लीज अनम्यूट। अमन प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ, so as what are the two things are required? Here is a hardware part and software part, right? Right. Yes, sir. So hardware part में ये LDR is controlled with some Arduino या जो भी है उससे हम कंट्रोल करेंगे, किसी भी कंट्रोलर से। कंट्रोलर चाहिए इसके लिए, कंट्रोलर या टाइमर बेस्ड बाद में पढ़ेंगे आप। कंट्रोलर चाहिए, उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर में लोड क्या होगा? प्रोग्राम। हमेशा याद रखना, कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर में हमेशा प्रोग्राम लोड करते हैं, और प्रोग्राम में क्या कंडीशन होगा? इफ इल्स वाला होगा, है ना, जो भी मैंने बताया। तो समझ में आ रहा है क्या क्या रिक्वायर्ड है? यदि कोई आप कार देखते हो, तो कार तो देखते हो, कभी सोचते हो कि कैसे बना है, क्या है? तो ये एक स्विच दबाते हैं तो ये लेफ्ट इंडिकेटर देने लगता है, ये करते हैं तो राइट इंडिकेटर देने लगता है, राइट। तो ऑल आर प्रोग्राम बेटा, ऑल आर प्रोग्राम बेस्ड, और वो किससे जुड़ा हुआ है? हार्डवेयर से, राइट। हार्डवेयर से सर। यस सर। तो दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कि हम एक तरह से लैगिंग कर जाते थे। कहाँ पे लैगिंग कर जाते थे? जहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग आता था तो हम थोड़ा सा लैगिंग कर जाते थे, बट सॉफ्टवेयर पार्ट में सर। हाँ, तो ये आपको राइट टाइम है जहाँ पे कोई टीचर आपको बता रहा है कि नहीं, हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग भी अच्छे से करनी है, जिससे कि यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। ओके, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम अब वेरिफिकेशंस करेंगे, राइट। अभी मैं इतना बता दिया। स्टेप 1, तो सबसे पहला होता है स्टेप 1 इज डिजाइन द सर्किट। डिजाइन द सर्किट में क्या होगा? लेट अस अज्यूम दैट 8 पिन का आपका है, वैसे लेट अस अज्यूम दैट 64 का है, मैं इतना ले रहा हूं अभी, राइट। अब इस तरह से प्रोग्राम हमें इसमें क्या करना है? कंट्रोलर है, कंट्रोलर है। अब इसके साथ कोई सर्किट है जो LDR लगी हुई है। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। इस पे जो है VCC लगा हुआ है, और ये ग्राउंड है। VCC मतलब 5 वोल्टेज है, लेटेस्ट अज्यूम दैट। ओके, अब ये LDR को कंट्रोल करना है, तो डायरेक्टली LDR तो लगेगा नहीं। इसके साथ बेटा हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इन तीनों में से कुछ न कुछ लगेगा। इसको बर्न बचाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। यदि मुझे जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कुछ फंक्शन होगा वहाँ L लगता है, जहाँ पे स्टोरेज की बात होती है वहाँ पे कैपेसिटर लगता है। तो ऑल आर डिवाइस मैंने ऐसे बना दिया, राइट। तो हमारा जो सर्किट अब बनेगा कैसे दिखेगा, मैं अभी एक्चुअली भी दिखाऊंगा। तो हमारा सर्किट कैसे दिखेगा? PCB पे ऐसा दिखेगा, कंट्रोल, ये वाला, इधर भी 2, और ये भी, ये हो गया इसका लेआउट, राइट। तो फर्स्ट पेज में हम सर्किट का क्या करते हैं? हम सबसे पहले बनाते हैं सर्किट, राइट। और सर्किट आपका लॉजिक होना चाहिए कैसे, कि मुझे क्या डिजाइन करने के लिए बोला गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। यस, इनिशियल फेज में चलेगा। इनिशियल फेज में मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से लेना है। मैंने बताया भी हुआ है लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक्स 4 से आप कुछ आप ले सकते हैं, कुछ सर्किट ले सकते हैं, और जहाँ से आप कंपाइल कर सकते हैं अपने लिए।
सो ये लेटेस्ट अज्यूम दैट ये हमारा सर्किट बन गया, राइट। और इस सर्किट को हम क्या करते हैं, बेसिकली सर्किट रहता है ये ऐसा, इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, राइट। ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 इज एक्चुअल सर्किट, एक्चुअल जो आपको दिखता है। दूसरा, उसको हमने प्लॉट किया है यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्म में। ये आपको मैं एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, दैट सॉफ्टवेयर नोन एज एक्सप्रेस पीसीबी, और पीसीबी एक्सप्रेस भी बोलते हैं, बट एक्सप्रेस पीसीबी। एंड सेकेंड वन इज नोन एज ईगल। तो ईगल का लाइसेंस चाहिए, तो हमारे पास है, बट आप घर पे हैं तो यूज नहीं कर पाएंगे, बट पीसीबी एक्सप्रेस कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, जैसे अब मैं एक ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगा, अभी वीडियो भी दिखाऊंगा। वंस यू विल डिजाइन दिस सर्किट, देन यू विल टेक द प्रिंट, राइट। इसका क्या करोगे, यू विल टेक द प्रिंट, राइट। प्रिंट लेंगे आप, प्रिंट A4 पेज पे, A4 साइज पेज पे आप इसका प्रिंट लेंगे। और हमेशा याद रखिए, इसका प्रिंट जो लेंगे वो लेंगे लैंडस्केप एरिया में, राइट। जब आप प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट लेने के बाद कैसे प्रिंट लेंगे, इसका बेटा ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ रेड, उसको इसका प्रिंट लेंगे, राइट। ये इसका, राइट। वंस यू विल टेक द प्रिंट, कहाँ से, आप कैसे प्रिंट लेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल यूज ग्लास पॉक्सी पेपर बोलते हैं इसको। कभी आप यदि ग्लास पॉक्सी पेपर या इपॉक्सी पेपर भी बोलते हैं इसको, पॉक्सी पेपर नहीं है समझ में आया तो कुछ नहीं, एक अपने जनरल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि फोटो पेपर नियर अबाउट 10 रुपीज की आती है एक कॉपी, जहां पे आपका फोटो जिसमें निकलता है वो लेंगे। एंड लेजर जेट से जाएंगे और इसको प्रिंट करेंगे, लेकिन प्रिंट ऐसे होगा नहीं। उसके लिए प्रिंट निकालने के लिए यू शुड हैव द पीसीबी एक्सप्रेस। आपके सिस्टम पे पीसीबी एक्सप्रेस है। पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली बताऊंगा सब कुछ, डोंट वरी यार, ओके। सो अब ये लेंगे, आपने प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंट आउट लेने के बाद ये सर्किट इस तरह से जाएगा। अब ये सर्किट जो है, ये जो सर्किट है ये वाला देखिएगा। अब ये सर्किट ऐसा दिखेगा पीछे से, आपको लोग को दिख रहा है तो बताइएगा। ये सर्किट देखो, इसमें भी कॉपर नहीं है, अब कॉपर हट गया है। कैसे हटेगा, दिख रहा है बेटू सर्किट? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, सो पहले था ऐसा पीसीबी मतलब प्रिंटेड था, कॉपर प्रिंटेड था, बट ये कैसे हट गया भाई, इसमें तो प्रिंट लेना था सिर्फ। तो यस, जो ये सर्किट है, जैसा इसमें सर्किट दिख रहा है बेटू आपको, वो सेम, पहले आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा क्लोज कर देता हूं। ये है, पहले आप लोग सबको देख लो। दिस इज द अदिति, दिख रहा है बेटू? यस सर। हाँ, तो ये ऐसा सर्किट जो मैंने भी पेन से बनाया था, उसका हम क्या करेंगे, एक फोटो पेपर लेंगे, उस पर प्रिंट लेंगे बेटू। प्रिंट लेने के बाद अब क्या करेंगे, ये कैसे सर्किट इस पे छप जाएगा, तो क्या करेंगे, स्टेप 3, प्रिंट लेने के बाद स्टेप 3, प्रिंट को इस पीसीबी पे रखेंगे कैसे, तो लेते हैं, ये पेज पे मैंने प्रिंट लिया सर्किट को और इसके ऊपर डाल दिया, राइट, रख दिया सर्किट पे, जहां पे एकदम किनारे पे रखने का, जैसे कि पीसीबी कम से कम वेस्ट हो, बहुत कॉस्टली आता है, तो मैंने इस पे रख लिया। अब इस पे क्या करेंगे, अपने और सब जगह तो आजकल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन सब आ गए हैं, बट जो अपना फैब्रिकेशन मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है कि ऐसा करेंगे और इस पे एक हॉट आयरन चलाएं, राइट, जो प्रेस हो है घर में रखा हुआ, जैसे प्रेस करते हैं अदिति, वो आप लेंगे और इस पे इसके ऊपर चलाएंगे, तो सर्किट जो होगी मैं दिखा देता हूँ, मैं पेन से दिखा देता हूँ सर्किट। ऐसा सर्किट है, लेटेस्ट, ये देखिए अब ऐसा सर्किट, अब इस दिख रहा है अदिति सर्किट? यस सर। ये सर्किट हमने ऐसे हाथ से बनाया, लेकिन आपको बनाना है पीसीबी एक्सप्रेस से, जो भी बताऊंगा। अब क्या करेंगे, इसको इस पे रखेंगे, तो इस पे बेटा फोटो पेपर पे जो प्रिंट लेंगे तो गहरा इंक आ जाएगा बेटा, इंक, ब्लैक इंक, राइट। तो इस पे ब्लैक इंक रहेगा और उस पे क्या करेंगे, अपना पीसीबी
पे A4 साइज का ये सर्किट यहाँ पे डाल दिया, और उसके ऊपर क्या किया हमने, अब क्या डालेंगे, प्रेस किया किसको, आयरन को रखा, और थोड़ा धीरे धीरे स्लोली उसको चलाया। एक साथ रख लेंगे तो पीसीबी जल जाएगा, इसलिए आराम से थोड़ा रख के धीरे से थोड़ा रखेंगे। तो अब ये सर्किट, अब ये जो सर्किट है यहाँ पे ऐसा छप जाएगा, ये सर्किट यहाँ पे छप जाएगा, राइट। तो स्टेप 3 ये आ गया। उसके बाद स्टेप 4, अब ये सर्किट जो इस पे पीसीबी पे आ गया है, उस सर्किट, अब मुझे वही सर्किट चाहिए, बाकी को निकालना है, राइट। और अब बाकी को मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसके पीछे तो अभी आयरन क्या था, कॉपर था, राइट। तो कॉपर को जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक सर्किट आएगा नहीं बेटू, आएगा। आदित्य सिंह प्लीज अनम्यूट, आदित्य प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ, तो इस पे सर्किट आएगा नहीं जब तक कि हम इसको और सब कॉपर को, सारे कॉपर में से सिर्फ सर्किट का रहने देंगे, बाकी को हटाना है मुझे, तो क्या करेंगे आदित्य बताइए सबको, क्या करेंगे। सर हीट कर देंगे तो वो उस पे, सर उसको अगर हीट कर देंगे तो उस पे प्रिंट हो जाएगा। ग्लास है नीचे गल जाएगा बेटू, है नीचे, मैंने बताया था एक तरफ क्या है ग्लास, एक तरफ कॉपर, बताया था बेटू। यस सर यस। हाँ, तो क्या करेंगे सोचिए, बताइए। विदेही त्रिपाठी प्लीज अनम्यूट, विदेही प्लीज अनम्यूट, विदेही प्लीज अनम्यूट, विदेही आवाज आ रही है। हाँ, क्या करेंगे, यहां तक समझ में आया क्या क्या किया। यस सर। अब मुझे कॉपर को हटाना है, जिससे कि मेरी सर्किट सिर्फ उस पे रहे और बाकी सब कॉपर हट जाए। तो व्हाट विल डू, सिंस कॉपर इज देयर, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, FeCl3 डालते हैं, FeCl, राइट। तो क्या होगा, कॉपर क्लोराइड मिलके डिजोल्व होके बाहर निकल जाएगा, सिर्फ आयरन वहां पे रहेगा, राइट। अब क्या है, ध्यान से देखना, जहां जिस पॉइंट पे विदेही, जिस पॉइंट पे इंक लगा हुआ है, सर्किट बना हुआ है, क्या वो FeCl3 से रिएक्शन करेगा। नो सर, नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे इंक लगी हुई है, तो उसको नीचे जो कॉपर को ढक लिया उस कवर ने, जो सर्किट बना हुआ था उसको कवर किया हुआ है, तो उस पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो बाकी सारे डिजोल्व हो जाएंगे कॉपर, सिर्फ जो सर्किट है वो सिर्फ हमारा बच जाएगा। और सर्किट डिजोल्व होने के बाद जो है वो कैसा दिखेगा बेटू, अंडरस्टूड। यस सर। तो दिस इज द FeCl3 किया तो क्लोराइड निकल जाएगा, तो ओनली remaining part where ink was deployed, so वो वाला एरिया रहेगा, बाकी सारा का सारा गया, और हमारा जो सर्किट है, एक्चुअल सर्किट, पीसीबी सर्किट हमारा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बट अब ये बनता कैसे है, कैसे क्या करते हैं, वो मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा एक दो। और उसके बाद अदर साइड में देखना, अदर साइड में ये एक हमने बच्चों ने बनाया हुआ है, जो पहला हम लैब देते हैं सबको, अपना मोबाइल चार्जर। सो दिस इज द ओन मोबाइल चार्जर। इधर क्या क्या लगा हुआ है, देखो ध्यान से, क्या लगा हुआ है विदेही, क्या लगा हुआ है, देखा है कभी। यस सर, देखा है, बट आई डोंट नो द नेम्स। हाँ, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये लगा हुआ है, राइट। रजिस्टर और चार जो आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है, और जो चार दिख रहा है, दैट इज एज अ बिहेव सच। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसके साथ ये डायोड कैसे कंप्यूट करते हैं। डायोड लगाएंगे तो रेक्टिफायर की तरफ कैसे बिहेव करवाएंगे। अब मैं एक दिन सबको, उन लोगों को तो बता चुका हूं, बट आप लोग को भी बताना है कि जितने भी सर्किट बोर्ड में है वो 230 वोल्टेज है, लेकिन जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो नियर अबाउट 5 वोल्टेज या मैक्सिमम 12 वोल्टेज। अब तो 90% 5 वोल्टेज पे ही ऑपरेट होता है, कुछ चीजें 12 वोल्टेज पे होती है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे कन्वर्जन होता है। और अभी मैं मोबाइल का आपके पास जो पड़ा होगा उसके साथ में डील भी करेंगे। बट अभी मेरा आज का जो मैं एजेंडा से भटकना नहीं चाहता, राइट। सो हमारा जो एजेंडा था कि अब हमने कॉपर डिसॉल्व हो गया, हमारा फाइनल जो है स्टेप 5, अब मेरा सर्किट बन गया, सर्किट लेआउट इज कंप्लीट। नाउ सर्किट लेआउट में करने के बाद अब मुझे उसमें डिप्लॉयमेंट करना है। क्या डिप्लॉयमेंट करना है बेटा? डिप्लॉयमेंट करना है कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो अभी मैंने दिखाया आपको, रजिस्टर, Yes. ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये डिप्लॉय करना है उसके पीछे साइड से, ये पीछे साइड से। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इससे पहले डिप्लॉय करने से पहले क्या होता है, हमें प्लीज ये डिप्लॉयमेंट करने से, सर्किट डिप्लॉयमेंट करने से पहले एक स्टेप 5 लिख लो, ये स्टेप 6 कर दो। स्टेप 5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से क्या होता है कि कंपोनेंट का आपको होल्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें कंपोनेंट वो क्या होता है आप लगाते हैं, राइट। तो लिख लीजिए ड्रिलिंग, उसके बाद कंपोनेंट को डिप्लॉयमेंट करते हैं। पहले ड्रिल करेंगे, छेद कर लेंगे, फिर कंपोनेंट उसमें डालेंगे, राइट। ये रजिस्टर कैपेसिटर के लिए ये ड्रिल है। कहीं कहीं छेद दिख रहा होगा, जो खाली दिख रहा होगा बेटा, आपको दिख रहा होगा खाली, Yes, sir. है ना। सो पहले ड्रिलिंग एंड देन कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट। और जब ड्रिलिंग हो गया, कंपोनेंट डाल दिया, तो क्या ऐसे ही हो गया? नहीं, पीछे की तरफ ये जो किया हुआ है बेटा ना, आपको दिख रहा है जो सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ, उसको बोलते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 उसको बोलते हैं जो हमने पीछे किया हुआ है ना, सर्किट को ना जोड़ा हुआ है, देखना सारे। ओके, सो नाउ इसको हम करते हैं कनेक्शंस, जितने भी है उसको हम कनेक्शंस करते हैं। उसको बोलते हैं मेथड को सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का नाम सुना है? सोल्डरिंग, सोल्डर कर दो, है ना। तो सोल्डरिंग के भी मेथड्स हैं, क्या क्या यूज करना पड़ता है। तो हमारा सोल्डरिंग मशीन है हमारे पास, इचिंग भी मशीन है, सारे मशीन्स हैं हमारे पास, बट कोविड के कारण अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको भी वीडियो भी दिखाऊंगा। उसके बाद एक प्रोसेस हम करेंगे। जब सोल्डरिंग हो जाएगा देन योर सर्किट इज कंप्लीट। उसके बाद स्टेप 8 आता है टेस्टिंग, राइट। टेस्टिंग, तो टेस्टिंग से पहले हमेशा याद रखें, टेस्टिंग हमेशा मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को करंट ही लग जाए, तो मल्टीमीटर एक होना चाहिए। एक इंजीनियर के, अपने फर्स्ट इंजीनियर के पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, कुछ डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होने चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए। या रजिस्टर कैपेसिटर आप तब खरीदे जब आप डिजाइन करेंगे। तो आप सबको मैंने टास्क दिया हुआ था पहले, और जो मैं अगले वीक में आपसे लेने वाला हूँ सबसे। अब तो हो गया, अब आपका मैं ही खाली नहीं पढ़ाता जाऊंगा। आप जो नए बल्कि बच्चे आए हो तो ठीक है, बट आप लोग को भी, सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 95, उस सबको आपको अपना सर्किट डिजाइन करना है फॉर द मोबाइल, राइट। सो मोबाइल चार्जर के लिए आपको अपना सर्किट डिजाइन करना है। तो रिमेंबर दिस एंड ऑलवेज रिमेंबर कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं। आई विल टेक द सीरियस एक्शन। It's okay, this is the second class you are associated, but in future I will take the serious actions on this. आपको सारी क्लास अटेंड करने हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे से इंटरेक्ट करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि सौरभ प्लीज म्यूट के रहो, ये कुछ पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करना बेटू। तो सर वो प्रॉब्लम हाँ बोलो, गया था, नेट चला गया था, कनेक्शन चला गया था सर, पूरा क्लास किया है। हाँ ठीक है, म्यूट कर लो। ओके, सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो अपने रूम में, जिस रूम में आप हैं वहाँ पे प्लीज एक तो अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से स्टार्ट कर लें। दूसरा पाइथन और सी को स्टार्ट जरूर कर लें। अपने रूम में एक टाइम टेबल बनाएं और इतना अच्छा से कर लें कि आपको प्रोग्रामिंग से हट जाए भूत। बाकी भूत तो हम लोग निकाल देते हैं, जितने भी टीचर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनको मतलब हमें पता है कि मैथमेटिक्स टोटल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। बट हमारा जो एक फोबिया है ना कि हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ये फोबिया प्लीज हटा दीजिए। आप सब कर सकते हैं। जो अभी जो बच्चा इधर जाके कुछ भी कर लेगा, आपको नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट यू नो बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोलूंगा, आपको भी नहीं बोलना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बस 12th पास किया और ये किया वो किया, दैट दे विल टेक द एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस। इतना लाखों स्टूडेंट्स, दे उसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे अच्छा नहीं करते, उसमें भी अच्छा करते हैं। जो चाहेंगे वो अच्छा करेंगे। तो विकी कुछ पूछना है आपको बेटा? देन आई विल कंटिन्यू। यस सर। सर स्टेप 4 में मेरा बहुत मतलब नेट स्लो हो गया था, इस कारण हम समझ नहीं पाए थे, प्लीज रिपीट कर। हाँ ठीक है ना, नो इशू। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टेप पूरा। सबसे पहले बेटू पहला काम क्या है, आपको कोई भी मैंने एक सर्किट दिया, सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने अभी टास्क दिया कि जितने भी पोल्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, उनको आपको एडेप्टिव कंट्रोल करना है। एडेप्टिव कंट्रोल का मतलब होता है बेटा
कि ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक मींस देयर इज नो एनी मैनुअल इनकॉर्पोरेशंस, राइट, कोई भी मैनुअली चीज नहीं होनी चाहिए उसमें, सब कुछ एडेप्टिव होने चाहिए। वो एडेप्टिव सिस्टम कैसे होता है, सब कुछ देखते होंगे आजकल, पीछे जब पीछे जाता है कार, यदि स्ट्राइक करने लगता है तो अपने आप ना पिंग होने लगता है ना, आवाज देने लगती है, बजर बनने लगता है। क्या कोई बोलता है इसको? क्या विकी कोई बोलता है क्या? विकी प्लीज अनम्यूट, जब पूछे हैं क्वेश्चन तो आप मेरे से इंटरेक्शन करना है ना। यस सर। हाँ, तो क्या होता है बेटा, जब कोई कार बैक करता है तो आपको आवाज आती है ना, तो दैट इज सेंसर इम्प्लांट है, और उसमें हो सकता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हो जो रिफ्लेक्ट करके बता रहा हो कि कितने डिस्टेंस पे है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, डिफरेंट सेंसर क्या होता है, हम बात करेंगे। हमारे पास सारे सेंसर हैं, मैं सेंसर का एक क्लास लूंगा अलग से, सारे सेंसर दिखाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब कि सेंसर को, अब क्या हुआ, सेंसर तो दे दिया, डाटा देगा, बट उसको किस पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, कैसा आउटपुट देगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहला है बेटा सर्किट डिजाइन। सर्किट डिजाइन आप अपने एक कॉपी पे एक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। जिस दिन आप सर्किट डिजाइन सीख जाते हैं, आप एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि आपने खुद से डिजाइन किया है कुछ। ओके, वंस द सर्किट यदि डिजाइन हो गया, उसके बाद हम उसको पीसीबी एक्सप्रेस पे या ईगल पे हम एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट मतलब कनेक्टिंग डॉट डॉट ये वो मैं भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके। तो ये करते हैं। जब ये आ जाता है बेटा, स्टेप 2 यदि हो गया, स्टेप 2 तक ठीक है विकी? यस सर। यस सर। बोलते जाना, जो ठीक है वो बोलते जाना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट आउट लेते हैं बेटू, प्रिंट आउट लेते हैं, और A4 पेज पे प्रिंट आउट लेंगे, और फोटो पेपर पे प्रिंट आउट लेते हैं। फोटो पेपर से थोड़ा क्लियर आता है। क्लियर आने से क्या होता है कि जब मैं इसको स्टेप 4 में प्रेस करूंगा, जब ये प्रिंट को लेके मैं प्रेस करूंगा उस पर रख के, तो अच्छे से क्लियर एक इमेज बनेगी, राइट। तो हमारा पीसीबी पे क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगी, और जो इमेज बन जाएगा वही हमारा सर्किट लेआउट है, राइट। तो इमेज को सिर्फ रखना है, बाकी को हटाना है। तो आप बताइए बेटू, यदि उसी को सिर्फ रखना है, बाकी को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है बेटू? यस सर। हाँ विकी अनम्यूट रहना। तो मुझे केमिकल रिएक्शन करने में फेरिक क्लोराइड डाल दिया इस पे। फेरिक क्लोराइड डालने से क्या होगा, कॉपर उसमें कॉपर क्लोराइड बनके डिसॉल्व होके निकल गया, और बचा कौन? जहां पे क्या था बेटा, इंक लगी हुई थी, किसकी? प्रिंट की प्रिंट का जो है वो इंक लगा हुआ था, वो बचा, बाकी सब डिसॉल्व हो गया। तो हमारा इंक ही तो चाहिए था, जो मैंने सर्किट डिजाइन था वही चाहिए था विकी, और को कुछ नहीं चाहिए था ना आपको? हाँ, अब एक बार सर्किट बन गया तो ओके। जब सर्किट बन गया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि मेरा सर्किट सब कंप्लीट है कि नहीं। तो मल्टीमीटर से हम टेस्ट कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी नहीं है तो कोई बात है, हम उसको सोल्डरिंग कर देंगे तो कंटिन्यूटी बन जाता है। स्टेप 4 के बाद 5 जो है, स्टेप 5 में है, हम उसको क्या करते हैं, जब हमारा सर्किट बन जाता है हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग मतलब छेद करते हैं, जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को डिप्लॉय कर पाए। जैसे आपका रजिस्टर और कैपेसिटर, इसके लिए हमें ड्रिल करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि दो पॉइंट है, कहीं पे 3 पॉइंट है बेटा, है ना, कहीं पे 2 पॉइंट है, कहीं के 3 पॉइंट है, तो उसको मुझे ड्रिल करनी पड़ेगी। तो ड्रिल करके मुझे उसमें इंसर्ट करना है, तो मैं ड्रिल करके कर लूंगा। ड्रिलिंग समझ में आया बेटू? यस सर। हाँ, ड्रिल करने के बाद अब हमारा ड्रिल हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ड्रिल हो गया, कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट करते हैं। ड्रिल कर लिया, फिर कंपोनेंट डिप्लॉय कर दिया। कंपोनेंट डिप्लॉय इज द 6th स्टेप, एंड 7th स्टेप इज सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन करने के लिए मुझे सोल्डरिंग करनी पड़ती है। सोल्डरिंग प्रोसेस एक बार मैं समझा दूंगा कैसे होता है। और दीजिए है, जब आप लोग सबको मैंने बोला था कि आप लोग अपना एक सोल्डरिंग आयरन ले लें, एक मल्टीमीटर ले लें, इतना जोड़ ले लें, और एक आर्डुइनो जोड़ ले लें। मतलब मजा आएगा जब आप काम करोगे, जब आप कुछ प्रोग्रामिंग करोगे। तो ये मैं लगातार लगभग 40-45 मिनट से बोल रहा हूँ। अब आप लोग का इंट्रैक्शन थोड़ा जरूरी है मुझे। और उसके बाद पूरा ये जब ये कनेक्शन होने के बाद, सोल्डरिंग होने के बाद, लास्ट स्टेप है बेटू टेस्टिंग। समझे विकी? लास्ट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब क्या कि आपका सर्किट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, अब मेरा सर्किट तो बन गया, बट इसको हमें कंट्रोल करना है, इस सर्किट को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से इंटरफेस करना पड़ेगा, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस करने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग आना चाहिए। प्रोग्रामिंग के लिए मैंने कौन सा लैंग्वेज बोला विकी? कौन सा लैंग्वेज पढ़ने हैं हमें? 2 लैंग्वेज, सी एंड पाइथन, बस। बाकी आप सब छोड़ दीजिए। आप लोग को मैं रिकॉर्ड हटा दूंगा, उसका मैं आपको प्लेसमेंट भी दिखा दूंगा। आपको बिलीव नहीं होगा तो आई विल शेयर द प्लेसमेंट डेटा फॉर दिस ईयर।
बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे तो थोड़ा सा बूस्ट ऑफ करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों प्लेसमेंट अच्छा है, तो वो मैं आपको शेयर करके दिखा दूंगा, बट आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ करके। ओके, सो नेक्स्ट इज सबसे पहले लिख लीजिए अब ये करेंगे कैसे। ये तो थ्योरेटिकल चीज हो गई, सारी थ्योरेटिकल इज डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, थ्योरेटिकल हमने कर लिया, अब प्रैक्टिकली करेंगे कैसे। तो सबसे पहले सब कोई अपने अपने सिस्टम पे हैं, तो प्लीज अपना अपना सिस्टम खोल लीजिए और सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, डालना है एक्सप्रेस पीसीबी। प्लीज मैं यहाँ से शेयर कर दूं स्क्रीन, मैं यहाँ पर स्क्रीन अभी 2 मिनट के लिए मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूँ बिकॉज मुझे वहां से स्क्रीन दिखाना है। तो स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ I'm going to share my this screen so that you are able to बताइएगा आपको जब दिखे स्क्रीन तो प्लीज लेट मी नो। ओके, तो सबसे पहले आप सबको गूगल में डालिए बेटू एक्सप्रेस पीसीबी, गूगल में डालिए सबको एक्सप्रेस पीसीबी। ऐड वाला नहीं खोलिएगा, ये खोलिए एक्सप्रेस पीसीबी का 20 इयर्स बता रहा है कुछ भी, ये वाला है डाउनलोड क्लासिक एंड डाउनलोड प्लस। तो पहले क्लासिक डाउनलोड कर लीजिए इनिशियल के लिए, प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं, और उसको आप डाउनलोड करेंगे। जब आपको बोलेगा डाउनलोड के लिए तो आपको पूछेगा मेल आईडी, तो इसमें मेल आईडी डाल दीजिए बेटू। दिख रहा है स्क्रीन, विकी स्क्रीन दिख रहा है मेरी? यस सर। हाँ, सो यहाँ पे आप वो कर देंगे, मेल आईडी करेंगे। मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो साइन अप दिखाएगा, तो बोलेगा कि हाँ आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने अब ये आ जाएगा दे मेल एड्रेस यू हैव एंटर्ड यू ऑलरेडी सब्सक्राइब, तो ये मैं डाउनलोड करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये फोल्डर ऐसा दिखेगा, मैंने में इंस्टॉल है ऑलरेडी, बट ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये खुलेगा, अब इस पर क्लिक करेंगे एग्जीक्यूटिव पे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आप अपने सिस्टम पे डालेंगे एक्सप्रेस पीसीबी। दिख रहा है, मैं तुम्हें ही पकड़ लिया हूं अभी, दिख रहा है एक्सप्रेस पीसीबी विदेही, दिख रहा है विदेही, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? नो सर। ओके, सो अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नो सर। सर मुझे दिख रहा है सर। ऐसा नहीं बोलो बेटा, दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। सो यस स्क्रीन दिख रहा है? नाउ दिस इज। हाँ नहीं बेटा, स्क्रीन दिख रहा है। अब क्या करेंगे, ये मैंने क्या किया, अभी डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मैं इस पे क्लिक किया तो अंदर आ गया। अब इस पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे एक्सप्रेस पीसीबी, राइट। तो जब मैं एक्सप्रेस पीसीबी करूंगा तो ये क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और ये खुल जाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। तो प्लीज सबको स्टेप कर लिख लीजिए। सबसे पहले आपको जो सॉफ्टवेयर एक सीखना है दैट इज नोन एज एक्सप्रेस पीसीबी। Express PCB, that's the first software you will learn, that is known as Express PCB. This is the electronic engineer software, and बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट आप कम से कम एक तो सबसे पहले रिज्यूम अब यहाँ से स्टार्ट होगा, so that you can write in your resume yes you are knowing the concept of PCB design। but अब PCB डिजाइन बोलने से तो नहीं होगा, हमें करना भी पड़ेगा, और वो चीजें मैंने आपको स्टेप्स एक एक करके मैंने बताया है। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, बट एक मैं ये दिख रहा है बेटू सबको यहाँ तक? सबको बेटू यहाँ तक? यस सर दिख रहा है। अब मान लो कि मुझे ये लाना है, एक मुझे ये क्या है, आईसी है, तो आईसी लाऊंगा। बोल रहा है कि नहीं, बिफोर प्लेसिंग अ कंपोनेंट इन नेम मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स ऑन द टॉप टूल बार। तो टूल बार का है ये, तो मुझे ये आईसी लेना है। तो आईसी वाले जितने भी होते हैं उसको बोलते हैं डिप। 4 पिन का लेना है, 6 पिन का लेना है, 8 पिन का लेना है, तो 8 पिन ले लो, 8 पिन आ गया। यदि मैं 4 पिन करूंगा तो क्या होगा बेटू, कितने पिन का आ जाते बताते चलिए? कोई भी अनम्यूट रही है ना, नहीं तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 4 पिन आ गया। समझ में आ रहा है बेटू? यस सर यस सर। यस। हाँ प्लीज कोई भी एक बंदे रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं बताया आपको
कि हम वो नहीं कर रहे हैं ना, प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं। सो अब ये दो दो डॉट को मुझे मिलाना है, तो मैंने डॉट, राइट। अब मुझे सॉरी, राइट क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब मुझे इसके साथ रजिस्टर जोड़ना है तो रजिस्टर जोड़ लूंगा, यहाँ पे हटा देंगे, फिर रजिस्टर आपको जोड़ना है तो रजिस्टर जोड़ देंगे। कंपोनेंट्स में जाएंगे तो सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, कंपोनेंट मैनेजर सब दिखेंगे आपको। बेटा कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर ले लेना, तो यहाँ पे कैपेसिटर डाल दोगे। मतलब करने का मतलब क्या है कि आप मतलब कुछ भी आप इसमें आप कर सकते हैं, और कुछ कोई भी डिजाइन आप कर सकते हैं। अब जस्ट यू आर एबल टू सी द माय स्क्रीन, ऑरेंज ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट एंड सेंड योर रिजल्ट इमीडिएटली फॉर प्रीव्यू। आ रहा है ना मेरे साथ? मैं अभी विद इन 2 मिनट्स में ऑरेंज हैज ऑलरेडी क्लियर द रिजल्ट। So this is the very good tools for the PCB design, Express PCB design, and this is a really fantastic tool. और जब आप करेंगे कैसे तो मैं भी बताऊंगा। यहाँ तक ठीक है, तो मैं आगे चलूंगा। अब कैसे फैक्ट्री में कैसे बनती है, और मैं पहले वो दिखाऊंगा, फिर एक्सप्रेस पीसीबी का एक ट्यूटोरियल भी भेजूंगा आपको, अपने से भी देखने हैं ना, अपने से भी आपको डिजाइन करने का आना चाहिए आपको, है ना। मैं ट्यूटोरियल वैसे भेज दूंगा, नो इशू। तो कैसे कोई सर्किट कैसे बनता है, कैसे करता है, तो मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा आपको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटू आप लोग को? यस सर, दिख रहा है सर। Yes. एक बार देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अब ये एक मिनट मैं बताता हूँ। अब ये सर्किट है टाइमर सर्किट, राइट। तो टाइमर सर्किट को 555 टाइमर बेस्ड है ना, आईआर इमीटर सर्किट बनाया है। तो अब इस सर्किट को मुझे अब पीसीबी डिजाइन करना है, वो अब दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखा होगा आपने, जूम कर दिया तो आप जूम भी कर सकते हैं। ये सर्किट एक साइड रखिए, लेफ्ट साइड, और एक साइड डिजाइन कीजिए। इसको बोलते हैं बेटा सर्किट लेआउट। दिस इज द सर्किट लेआउट। इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन का डिजाइन फैब्रिकेशन। अब कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से, तो कैपेसिटर ले आएगा, सी से कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर ले लिया इसने। अब इसको क्लिक करेगा, अब यहाँ ले आया। मल्टीपल कॉपी के लिए वो साइन था। और जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे वो उतना आप सीखते जाएंगे। और दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो आपको इंजीनियरिंग में सीखना है, दैट इज नोन एज पीसीबी एक्सप्रेस। इसका साइन भी नहीं ले रहा है, कभी कभी नहीं लेगा तो आप वो मत करिएगा। तो ऐसे करते करते ये सर्किट बनता जा रहा है। ध्यान से देखना, ये बहुत ट्रिकी है। यदि मुझे यहाँ से कनेक्शन देखो, यदि मुझे कनेक्शन यदि मैं अंदर से नहीं ले जाता इसको, क्योंकि ये तो खाली है, ऊपर से सॉकेट आ जाएगा। यदि मैं इसको फिर मैं इधर से लेके ऐसे, फिर जंपर, फिर ऐसे लाता तो जंपर लगाना पड़ता। बट इसको मैं डायरेक्टली अंदर से खींच लिया, तो मुझे जंपर की जरूरत नहीं है। याद रखना, लाइफ में जितने मिनिमम जंपर्स आप रिक्वायर्ड है होगा आपके सर्किट में, उतना अच्छा माना जाएगा। और जितना कम्पैक्ट होगा, जितना छोटा होगा आपका डिजाइन, उतना अच्छा माना जाएगा।
फाइनली आपका ये सर्किट जो है ये वाला अब ये बन गया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये फाइनल बन गया 555 टाइमर सर्किट। दिस सेम सर्किट इज लुक लाइक दिस। अब ये जो सर्किट है इसको क्या करेंगे वैदेही, क्या करेंगे इस सर्किट को, क्या करेंगे जेसिका, इस सर्किट को क्या करेंगे जेसिका? सब प्रिंट करेंगे। हाँ प्रिंट करेंगे। तो बताओ जेसिका, जेसिका ऑलरेडी डन। तो जेसिका इसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रिंट लेंगे। कैसे प्रिंट आउट लेंगे बेटू? सर ग्लास वाले उस पेपर पे प्रिंट आउट लेंगे इसका, लैंडस्केप में। लैंडस्केप में, वेरी गुड। जब एक बार प्रिंट आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में? उसके बाद वो प्रिंट पीसीबी बोर्ड पे रखेंगे और हॉट आयरन से ऊपर से उसको आयरन करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट 6th स्टेप में क्या करेंगे? आयरन करने के बाद फिर उसको FeCl3 में डालेंगे रिएक्शन के लिए, ताकि कॉपर बच जाए और बाकी और हाँ, सबसे पहले कि कौन सा पोर्ट लेंगे, स्टील का लेंगे कि प्लास्टिक का लेंगे, कैसा लेंगे? कॉपर का। नहीं, जिसमें इसको डुबाएंगे, FeCl3 जिसमें रखेंगे, FeCl3 का जो मेटालिक नहीं लेंगे। हाँ, हमेशा या तो ग्लास नहीं तो प्लास्टिक का यूज कीजिएगा, ठीक है? यस सर। नहीं तो वो रिएक्शन करके वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, यस सर, है ना? या आपका स्टील का पूरा बर्तन खराब हो जाएगा। सो प्लास्टिक का एक बर्तन में उसमें रख के पानी का इस हिसाब से लेंगे कि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, और उसके बाद सेक करते रहेंगे, राइट? सेक किस तरह से करते रहेंगे कि ये ज्यादा एक तरफ जल पड़ेगा तो भी जल जाएगा, तो थोड़ा आराम से सेक करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बेटू, तो सर्किट बन गया हमारा, उस पे FeCl3 खाली रह गया। उसके बाद क्या है स्टेप 7? सर ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग करना, वेरी गुड। सो ड्रिल करेंगे, उसके बाद ड्रिल करने के बाद कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट, और लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप शुभम? सोल्डरिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर PCB फैब्रिकेशन। सो समझ में आया थोड़ा मोड़ा आज? यस सर। सो एंड आपका लाइफ का पहला जो सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग का, उसका नाम आप याद रखिए, 2 ईगल एंड PCB एक्सप्रेस। बट PCB एक्सप्रेस इज फ्रीली अवेलेबल, तो हम इसको देखेंगे। अब हम एक वीडियो देखना चाहते हैं, देखेंगे, उन लोगों ने देख लिया हुआ है बट आपको भी थोड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। इंडिया में करीब 1000 PCB मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। उनमें डेली करीब 13,000 स्क्वायर मीटर PCB बनके तैयार हो जाती है। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इससे करीब 5 फुटबॉल के बड़े ग्राउंड कवर किए जा सकते हैं। PCB का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है उसकी डिजाइन से, और वो डिजाइन तैयार होती है कंप्यूटर के PCB डिजाइन सॉफ्टवेयर, और उसे बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया जाता है। अब PCB को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की सीटों को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। PCB की जरूरत के मुताबिक अलग अलग रॉ मटेरियल सिलेक्ट किए जाते हैं। जनरली रॉ मटेरियल में कॉपर और ग्लास से बने रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है। अब रॉ मटेरियल की शीट्स को PCB की साइज के मुताबिक कट किया जाता है। अब CNC मशीन में PCB की डिजाइन के मुताबिक ड्रिलिंग होता है, क्योंकि उस पे बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को लगाए जाने वाले हैं। और अब PCB की ट्रैक प्रिंटिंग की मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके लिए सबसे पहले डमी फ्रेम पर UV लाइट की मदद से ट्रैक एक्सपोज किए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि एक्सपोजिंग मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है, उससे वो बिगड़ भी सकता है। उसके बाद तुरंत डमी फ्रेम को पानी के फव्वारे से क्लीन किया जाता है, ताकि अच्छे से ट्रैक विजिबल हो। अब कॉपर के रॉ मटेरियल पर डमी फ्रेम पे इंक डाल के ट्रैक प्रिंट किए जाते हैं। उसके बाद प्रिंट की गई कॉपर की शीट्स को ओवन में रख दिया जाता है, क्योंकि इंक अच्छे से सूख जाए। अब शीट्स को ओवन में से 15 मिनट के बाद निकाल के इचिंग प्रोसेस में भेज दिया जाता है। अब इचिंग प्रोसेस में एमोनिया का स्प्रे करके बिना प्रिंट किया गया कॉपर निकाल दिया जाता है। अब उसे क्लीनिंग के लिए ब्रशिंग प्रोसेस में भेज दिया जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं उसमें पीसीबी ग्रीन कलर की होती है, तो वो ग्रीन कलर की और एलईडी के लिए व्हाइट कलर की पीसीबी को दोबारा से प्रिंट किया जाता है क्योंकि ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो जाए, और इस प्रोसेस को मास्किंग कहा जाता है। अब मास्किंग प्रोसेस के बाद उसको फिर से ओवन में 130 से 150 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और आधे घंटे के बाद उसको निकाल दिया जाता है। अब पीसीबी 80% तैयार हो चुकी है। अब तैयार हुई पीसीबी के प्लेट्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और एसएमडी कंपोनेंट प्लेस किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि ट्रांजिस्टर, एलईडी, कैपेसिटर वगैरह वगैरह। अब ये पीसीबी फाइनली रेडी है इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज में, गैजेट में और मोबाइल में यूज होने के लिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में यूज होने वाली पीसीबी। So this is the process of you can design your own PCB. That is the factory में कैसे बनता है, और जो मैंने बताया आपको that is the master stroke. You can make your own PCB without in such a long process. But yes, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए तो ऐसे बना सकते हैं, बट आपको यदि प्रोटोटाइप बनाना है तो no doubt that's why the factory is there, and that's why you people will open your own startup company. How efficient way to do this. पहले हम सारा का सारा चाइना से मंगाते थे, आज हम फैब्रिकेट कर रहे हैं, और थोड़ा सा और कंडीशन खराब हुआ तो शायद हम सब कुछ अपने आप ही बनाने लगे। क्योंकि हमेशा याद है रखना, जब तक आवश्यकता नहीं होती ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपको मिल जाएगा ना तो कोई नहीं करता सॉल्यूशंस। यदि आपको आज बोल दिया जाए कि नहीं कोई भी कंट्री हमें वैक्सीन नहीं देगी ना, तो कल हम बना लेंगे। इसी तरह से याद रखिए हमेशा लाइफ में कि हमेशा दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो चीज बनी हुई है उस चीज को मत देखिए, आप उसमें इंप्रूवमेंट के देखिए, इसमें इनोवेशन क्या हो सकता है। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके, समथिंग प्लीज अनम्यूट म्यूट, और यदि पूछना है तो प्लीज आस्क। यस हाँ, कुछ पूछना है बेटा तो जल्दी पूछो, नहीं तो प्लीज म्यूट। हाँ, okay, so just I'm going through one by one. Ankit Singh, please unmute. Yes, sir. बेटा समझ में आया Yes, sir. how the process can be done? Yes, sir. कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, because I am randomly asked for only 4-5 students, right? So कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हम फिर से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो परसों ही आपका थर्सडे को। No, sir. No doubt, sir. ओके, तो पीसीबी आज सबसे पहले क्या करना है अंकित? आपको सिस्टम है आपके पास? No, sir. मोबाइल फोन है, sir. अच्छा, हाँ, तो अभी ट्राई करना है कि हमारे पास सिस्टम हो, है ना? नो डाउट योर इतना भी नहीं करना है कि पेरेंट्स को लोड आ जाए ज्यादा, बट इफ यू आर एबल टू डू देन टेक योर ओन सिस्टम, बिकॉज ऑनलाइन प्रोसेस के कारण नहीं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है हमें कभी भी, क्योंकि हमारे पास इतने सिस्टम्स हैं कि मतलब सारे बच्चे एक भी यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लैब में आप जब भी आए अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो इट्स ओके। नेक्स्ट आई विल मूव दीपांशु कुमार। दीपांशु, प्लीज अनम्यूट। यस सर। दीपांशु, समझ में आया जो मैंने बताया? यस सर। सो फर्स्ट ट्राई टू इंस्टॉल द पीसीबी एक्सप्रेस। देख लो यदि उसका मोबाइल वर्जन है तो अच्छी बात है, एप्स के थ्रू, नहीं तो यदि सिस्टम है यदि तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट सबसे पहले लेकिन पीसीबी एक्सप्रेस टूल सीखना है हमें, ठीक है?